सो स्टार्ट करते हैं. ओके. So great evening once again. I welcome you all on this wonderful evening. Um, so myself Akash Babad, founder CEO Babad International Publication and Babad Films. So today we have amazing panel discussion with renowned personalities. So today is International Youth Day, and on this occasion we are discussing on empowered youth, empowered nation, the youth revolution. So this is our topic, and would like to invite our panelists first. So would like to welcome uh, Professor Dr. Pramod Kumar Rajput sir. Welcome, sir. Thank you very much. Would like to invite Mamta Awasthi ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, We Akash. have we have one more guest, Dr. Harvandan Kaur Bedi ma'am. Welcome, ma'am. Good We evening. have Dr. Subha Mukherjee ma'am. Welcome, ma'am. And two more panelists we will join soon. सो टुडेज टॉपिक इज एम्पावर यूथ एम्पावर नेशन. जब ये टॉपिक फाइनलाइज कर रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे थे, बहुत सारे डिस्कशन हो रही थी कि क्या थीम डिजाइन किया जाए, क्यों किया जाए, उसके पीछे क्या रीजंस होंगे एंड उससे क्या हम देने वाले हैं. तो बेसिकली जो एक्सपर्ट्स को हम लोग इनवाइट कर रहे थे, मुझे पता था कि चलो कौन ज्वाइन कर सकते हैं, कौन ज्वाइन करने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि ये टॉपिक हम लोग लेते हैं. क्योंकि यूथ्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाए तो हम उनको एम्पावर कर सकते हैं. उनको एम्पावर कर पाएंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नेशन को ही एम्पावर कर रहे हैं. कंट्रीब्यूशन तो वहाँ होना है. सो बेसिक आज शुरुआत करते वक्त मैं ये एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये कॉमन क्वेश्चन मैं राजपूत सर आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यूथ क्या है, और अगर यूथ को हम जिस तरीके से देखते हैं, आप कैसे यूथ को देखते हैं? So thank you, Akash ji, and namaste. Good evening to everybody. Such a wonderful question. And you have taken me that yes, as a youth, what I used to see, what I've seen the changes, and what today is youth, the youth is, and what tomorrow the youth is going to be there. Because Akash ji, after 2 days, right, we are going to celebrate our 79th Independence Day, which is a matter of great pride. Because our forefathers gave us the political freedom. And today, the challenge before us is to achieve the economic, social, and the technological freedom, which is very important. Yes. अब आपका जो क्वेश्चन इतना अच्छा है, हिंदुस्तान, भारत में हमारा 65% of the youth, we are the young nation because 65% of the population are below 35. Right? This is one of the great things there. And what is the vision of our respected Prime Minister? That Vishwaguru by 2047. So who is going to take? The youth is going to take. Because youth empowerment leads to the national empowerment, nation's empowerment, Bharat empowerment, which is very, very important. Yes. हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि power of the Bharat is the youth. And how the power is going to take care? It is innovation with enthusiasm. ये उनका एक बहुत ही सिंपल मंत्रा है, innovate and enthusiasm, right? And that is the reason when I talk about the youth, there is a ATL, right? Atal Tinkering Mission, because I am a part of that also. आज 10,000 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. 722 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए थे और दे हैव डन द टिंकरिंग पार्ट. ये छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ. सो वो जो इनोवेशन माइंड डेवलप किया जा रहा है ऑन दैट लेवल, विच इज गोइंग टू हेल्प देम टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट. सो मेरे हिसाब से जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज का यूथ कल का हमारा फ्यूचर है, हमारा पिलर है. और जिस हिसाब से हमारा भारत नेशन बना रहा है, एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट से, लीडरशिप क्वालिटी से, हमारा यूथ 100% पूरे वर्ल्ड में राज करने वाला है. यस, अमेजिंग अमेजिंग. एंड यस सर, यूथ के अंदर वो पावर है, यूथ के अंदर वो कैपेबिलिटीज है, इसीलिए
जितने भी महान लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो यूथ्स के ऊपर विश्वास रखे हुए हैं। इतिहास में भी देखेंगे तो यूथ्स के ऊपर उन लोगों को विश्वास था जो बहुत महान लोग थे। और उनके विश्वास के चलते उन्होंने यूथ्स के लिए काम किया है, और यूथ्स ने भी वो उनके विश्वास पे वो खड़े रहे हैं। तो आज अगर हम लोग देखेंगे, स्टिल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। और उसमें भी मतलब जब प्रॉब्लम्स, देखिए, अगर अच्छी चीज होनी है तो उससे पहले प्रॉब्लम्स भी हुई है, तब जाके वो अच्छी चीज को हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। दो चीजें सेपरेट होती है। तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर बेदी मैम को पूछना चाहता हूँ कि मैम, आपको क्या लगता है कि आज का जो यूथ है उसके सामने क्या चैलेंजेस है, कि ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बताना चाहूंगी कि जैसे सर ने बोला कि हमारी कंट्री 15 से 35 को यूथ मानती है, जबकि WHO के मुताबिक इट इज 15 to 24। तो हमारी अगर हम पॉपुलेशन देखें तो वी आर द यंग, वेरी यंग कंट्री। ना जो प्रॉब्लम्स हैं यूथ की, वो दे स्टार्टेड पोस्ट कोविड मेनली, एंड नाउ अगर आप देखो तो वर्ल्ड में देर इज अ लॉट ऑफ टेंशन गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड द डिजिटलाइजेशन इन AI। सो इससे क्या हो रहा है कि बहुत लोग आर, लॉट ऑफ कंपनीज आर रिमूविंग लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम वर्क। तो नंबर वन प्रॉब्लम तो यूथ को जो है आज, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो नाउ अनएम्प्लॉयमेंट से व्हाट हैपेंस, एक तो आपका सेल्फ एस्टीम इज गोइंग टू बी लो। आपकी खुद की फैमिली, लीव द सोसाइटी, आपकी खुद की फैमिली आपसे दूर होने लग जाती है। एंड relationships have become very important, as the generations change. So girlfriends and divorces and all this leading to suicides, increase in suicide. So this is one of the major, unemployment is one of the major problems. And to solve this major problem, we have to, sir said, we have to make education more innovative, skill oriented. वो wrote उससे कि अच्छे number 90 95 आ गए और मुझे I will get a seat, and all this is not going to happen now. How skill oriented you are, यस। how many skills if you've undergone career counseling की दो ही, there are not only two, जैसे कि हमारे अभी भी चला आ रहा है कि या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर, देर आर सो मेनी थिंग्स, बस यू हैव टू बी गुड इन योर जॉब। So if you यस। want me to go, you can go, like sir said, for a very long time. And if you feel कि everybody needs a chance, you can come to me again. यस यस, डेफिनेटली मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ये जो प्रॉब्लम्स है तो इस पे हम थोड़ा और भी डिस्कशन करेंगे, उस पे क्या और सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, एक एक प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करें। तो मेन पर्पस आज का पैनल डिस्कशन का यही है कि अगर हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें तो ज़्यादा बेटर चीज़ें हो सकती है। तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन सुबह मैम से पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत सारे यूथ्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुके हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस मैम। तो क्वेश्चन यही है कि जैसे मैम ने कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर किया है, कोई भी एक प्रॉब्लम के साथ आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं आज के यूथ्स को, अगर हम ध्यान में रखते हैं तो। See, first of all, education, right? Ma'am told about that students are not educated. Rote learning should not be there. Skill-based learning should be there. So, if you just look at that NEP, government has come up with the NEP, New Education Policy 2020, which is emphasizing upon skill-based learning. Even Yes. schools also, they are promoting this kind of education. One thing. Second thing is that it is giving a lot of flexibility to them to choose topics, to choose subject of their own choice. Harvinda Kaur ma'am, she said that unemployment. So for that unemployment, government is financing them, and that young entrepreneurs are given encouragement. So there are various
policies that government has come up with, I have already noted down. I would like to mention some of them, like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, which is trying to develop the skill amongst the children, basically among the youth, that they could be employed. Right. If there is lay down in the companies, they don't need to go for big companies, but they can start their own enterprise. And beside that, there is National Youth Corps also. Even government is giving the military education also, that they can be recruited in the army. So along with that, there's a national program for youth and adolescent development also. So different policies government has come up with, that they could be educated. They can start their own entrepreneur. Then that way they can fight unemployment. Yes. Second thing that ma'am raised up, the point is that education. So education, to reduce the dropout, this new education policy is giving multiple flexibilities that student can go ahead with according to their choice, according to their time limit. Yes. Yeah, can I add one thing what Shubha ma'am added? Yes, sir. Yes, sir. Please. Okay, so very well said. And since because I keep on learning on the artificial intelligence as well, right? So I just like to highlight one very important point here, because I just reading somewhere it is mentioned that AI is about augmenting our capabilities and unlocking the new possibilities. So it is going to enhance. So it is what Harvinder Kaur madam has said, that yes, people are getting laid off. At the same time, people who are getting upgraded, right? They are able to sustain, and the people who are not getting upgraded, they're still in the ritual system. They are being out, which is very important part. Now, Shubha ma'am has said that, which is very important, because Government of India is providing Startup India, Skill India, and Make in India. This is a government scheme is going on. We have to also have this gig economy and remote work, which is the digital job opportunities are there. A person today requires a laptop and a good Wi-Fi, maybe at the sea level also. You go and sit near to the sea, you go to there, but if you have two things, you can do the job. Another thing for the youth, let me tell you, the mental and the physical health is very important, because I just now saw Arvinder Kaur ma'am, she's talking about emotional intelligence. Technology and emotional intelligence, the blend of two things are going to make a difference, which is really the solution. Sports and fitness, we are in the concrete jungle. People, they don't encourage for the sport. So when you go for the sports, you have that sportsman spirit. You love to be failed, right? And then you start get up, right? And then you start working on that. Another point here, because I can talk about it, because you have touched such a great point. Environmental sustainability, green job training, because we are talking about the green things, right? So it is very, very important to talk about the green job, that how the sustainability, how the environmental part can be taken care. Now, the political part is changing. Now we don't have the leaders which are, sorry to say, they are illiterate. We have lot many literate leaders across the globe, right? So youth in the governance is more important, right? Civic education is more important. Political science, reading of things is more important. Now, coming to the other point, which today the parents, they have lot of money, but they don't teach the financial literacy. So if you start teaching the financial literacy, right, and making them independent, that how to use the money in the right perspective, we'll be able to build the youth towards the entrepreneurship mindset. I agree, everybody cannot become an entrepreneur, right? But somebody will be a job seeker and somebody will be a job provider. But if you are a job seeker and you have that entrepreneurship mindset, then you will be like Sundar Pichai. He is not the owner, but he is making the things happen, right? You cannot replace the Elon Musk, but after all, you are holding the things. You cannot become the owner of the entire Microsoft, but you can be a Sam Altman, right? This is the way it is there. So technology and innovation is another thing which has to be taken care. AI and automation is taken care. Now, another point is social unity. Today we are in the silos. You will agree with me, in this there is 4-bedroom house and the 4 people they are staying. Every room has become a home. They have their own TV, they have their own washroom, because the social unity is very, very important. It makes things very clear. Global competitiveness. The schools should teach what is happening in London,
what is happening in Manchester University in London, what is happening in Kellogg's. So if you start teaching this, you have that clear-cut mind, which is very important. That's why I like to say these are the important things. This is the solution, actually solution. And if you see on the bigger picture, you will able to find that the multiple solutions are there. Yeah, and it is with us in our reach only. It is not that we have to borrow something from somebody else. Everything is available in front of us. How to synchronize it and how to utilize it, then only we'll be able to change the thing which is the real requirement. So thank you. Sorry I took the time because it was a very important part. I thought let me pitch in and speak to on this. Thank you. Yeah, thank you sir for the valuable inputs. It's really important. एंड आज के टाइम में जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो है, इश्यूज है, ऑफ कोर्स वी एग्री, बट उसके लिए सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकले हैं, बट ऑफ कोर्स राइट अप्रोच नहीं हो पा रहा है, या फिर वो जिनको सॉल्यूशन चाहिए वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे. प्रधानमंत्री तो साहब क्या करते हैं, टर्न पेन इनटू पर्पस. यस, राइट, इट इज हिज टर्न pain into purpose. यस, This is Now very, very I'll important. speak about mental health. So if you think that we are only going to youth is only physical health, healthy, you know, robust, यही तो सोचते हैं ना हम. नहीं नहीं नहीं, So we इमोशनल have to इंटेलिजेंस have बहुत a इंपॉर्टेंट है, बहुत emotionally इंपॉर्टेंट. intelligent या youth, and we have to teach them like falling is not bad, and what is important is to get up after every fall and then make the youth resilient. So youth अगर पिक्चर आती है तो शायद पहले के लोगों को यूथ का फिजिकल पावर दिखता था, पर अगर देर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, अगर आपका मेंटल एंड वन थिंग मोर, आई थिंक वी शुड बी टॉट इकोनॉमिक्स इन द स्कूल. That is that we are not taught. And if everybody has a little knowledge of economics also now, will go very far way, for to helping them out and helping everyone around them. Madam, So I think right. You are right because I'm just putting it. Emotional intelligence is the basic part because emotional intelligence is the base of the leadership, right? Which is the mindset, which is understanding, empathizing the thing, understanding and embracing the situation. Second thing you said about economics. I put a thing that financial literacy is important because economic is the another level. If you start giving the financial literacy, then the people, then the students, the young children, they will be able to understand that how the money, how their parents, they are able to generate the money, how they're spending the money, and then they will be more towards economic. Today, you will not agree, you will not believe me, 67% of the BCom students are now being taken. 67%, where other sectors are going down, apart from IT sector. That is the thing, because if you choose BCom, BA, LLB, right, all these things, BComs are supposed to, because commercialization, economics are coming in that way. And this is a study which has come this month only, in the first week. It was there in Times of India. When you go through it, you will find this is the thing which is happening. So if somebody says BCom, I'm doing it, excellent. You can be a CA, you can be economist, you can be anything which can make a difference. So absolutely, you have touched the point. Thank you. Sorry, I feel bad. yeah, that's Here I want to absolutely. add one point, Akashi, if you allow me. Yes, ma'am. Everyone is talking about health and mental well-being. So nowadays, even the CBSE is working on it. If I think you must have heard about sugar chart. Every school is supposed to maintain sugar chart because health is becoming a major issue. Children are talking about depression, stress. So counseling sessions are already given, as well as sugar chart is expected to be maintained by the schools. Along with that economic class, not only economics, but there are geoeconomics, political economics, these kind of subjects have been introduced in schools. So this, from the school's point of view, I just wanted to add. Thank you so much. मैम, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है बहुत सारे लोगों को. इवन स्पेशली मैं मेरी बताता हूँ, मुझे भी फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं आता है. मतलब मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को देख के, और एक पर्सनली अभी मैंने कुछ मेंटर से सीखा है, तो वो सिखा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये सब चीजें होती है, तो बेसिक बेसिक चीजें, और सीखने से वो इम्पैक्ट भी पड़ता है.
तो मैं पर्सनली यहाँ पे सबको रिकमेंड भी करूंगा, जो भी यूथ देखेंगे आगे, कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे पहले फोकस कीजिए। आप बहुत सारी चीजें करेंगे, अर्निंग करेंगे, पैसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पैसा आता है चला जाता है, बट वो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग 10,000 रुपये महीना कमाते हैं फिर भी वो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग 1 लाख 2 लाख आते हैं फिर भी वो मैनेज नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम ये भी है। तो डिपेंड है, अलग अलग चीजें होती है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट, ये उससे निकल के आया है टॉपिक। और एक और चीज, जैसे हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ा रहे हैं, मैम को क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक चीज को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम यूथ्स को देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है स्पेशली यूथ्स को अगर हम लोग देखेंगे, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होता है तो उसके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होते हैं, जैसे हम 5 फील्ड्स को मानते हैं: पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। तो सब में वो बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि यूथ को मैं जिस तरीके से देखता हूँ कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल ले, तो भीष्म पितामह 170 साल के एज में भी युवा थे, और आज के युवा 18 साल की एज में भी बूढ़े हुए हैं। तो युवा कोई एज लिमिट नहीं है। युवा वो एक एटीट्यूड है, युवा वो वृत्ति है जो इंसान को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि युवा एक एटीट्यूड है, राइट। तो अगर वो एटीट्यूड को हम समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज उस एज ग्रुप में है, 15 से 24 बोले हम, 18 से 30 बोले, उस एज में भी जिन उनके साथ अगर हम बात करना शुरू करेंगे ना, तो वो सामने से उनका पहले से प्रॉब्लम से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ चाय भी पिए, कितने भी चाय के फैन हो। तो तो अगर हम ऐसे लोग, मतलब ऐसा अगर देखेंगे, तो पहले तो उनके माइंडसेट में चेंज लाने की जरूरत है। अगर उनके अंदर वो उत्साह होगा, वो कुछ करने की इच्छा होगी, तो फिर कुछ रास्ता बन सकता है, एंड उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें बनी हुई है। तो ममता मैम से यही क्वेश्चन है, मैम क्या आपको क्या लगता है आज के युवाओं को देख के, क्या उनमें वो एटीट्यूड की कमी है या फिर रिसोर्सेस की कमी है? तो मैं सबको सुन रही थी, और आप सभी लोग बहुत रेलेवेंट बात कर रहे हैं, राजपूत सर, बेदी मैम, शोभा मैम, एंड आकाश ऑफ कोर्स। यू ऑल्सो elaborated everybody's point in a right manner. मेरा थोड़ा सा एक आउटलुक मैं अपना एक दे रही हूँ, जो कि हमें शायद थोड़ा सा डिफरेंटली सोचने पे मजबूर करेगा। देखिए, आज का जो युवा है, वो युवा ऐसा क्यों है, हमें ये सोचना है। आज जो स्थिति बनी हुई है, युवा हमारा आज वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहा है, उसका अपना एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में वो किसी को एंटरटेन नहीं करता। आप देखिए, मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम यूथ ने अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे से ब्लॉक किया हुआ है, राइट। बहुत बुरा लगता है पेरेंट्स को, ये बात बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये उस जनरेशन के पेरेंट्स हैं जिस जनरेशन में न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रमोट किया गया था। ये वो जनरेशन के पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ के न्यूक्लियर फैमिली डेवलप करना अपनी चॉइस रखी थी, और उसी का नतीजा है कि आज जो हमारे बच्चे जिस एटीट्यूड पे आ गए हैं कि वो एक स्टेप अहेड हो गया है। तो वो जो एक अकेलापन है, एक अकेले स्ट्रगल करने की एक उनकी जो जो मजबूरी हो गई है आजकल, दैट इज रिलेटिंग टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, राइट। आज का पता है आपको, जो यूएनओ ने जो इंटरनेशनल यूथ डे 2025 के लिए जो थीम रखी है, वो इतनी अच्छी थीम रखी है, मतलब somehow I appreciated it a lot। उन्होंने थीम रखी है यूटिलाइजिंग यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, right? So see, the entire world is facing this problem of non-utilization of youth power in the right direction। तो हम अगर आज के गोल को थोड़ा सा ध्यान में रख के आगे देखें, सच बताऊं अगर मैं, तो युवा बहुत इनोवेटिव है आज का, क्योंकि उसको एक्सपोजर ज्यादा मिला है। उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके पास दिशा नहीं है। मैक्सिमम बच्चों के पास दिशा नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम है कि उन्हें कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये उन्हें समझ में नहीं आता। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लोग डाइवर्टेड हैं, ऐसा नहीं है। गड़बड़ वहां पे है कि हमने मॉरल वैल्यूज को एजुकेशन के साथ रिलेट करके नहीं
आगे बढ़ाया। जो राजपूत सर ने जो पॉइंट उठाया, आई टोटली एग्री विद दिस। अगर हम मॉरल वैल्यूज और नॉर्मल एजुकेशन को पैरेलल न चला के इनको एक साथ चलाएं तो बहुत फर्क पड़ता है एक पर्टिकुलर जनरेशन की सोच को डेवलप करने में, है ना। यस। हम जैसे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, मैं आपसे कह रही हूँ एक ही गली में 5 ठेले लगते हैं, पांचों भुट्टे बेच रहे हैं, राइट। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किसी एक का भुट्टा क्यों ज्यादा बिक रहा है। अगर उन्हें ये चीज हम किसी तरह स्कूल एजुकेशन में ही समझाएं कि भाई आपकी लोकेशन, आपकी चॉइस ऑफ लोकेशन, आपकी चॉइस ऑफ क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, आपका जो मार्केटिंग सेंस है, वो आपका बोलने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हाइजीन, ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगी आपके वैल्यूज पे, आपको कितनी इनकम आ रही। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग, ये गलती हम लोगों की है कि हम लोग उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं ज्यादा दोष देती हूँ उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स उस जनरेशन के पेरेंट्स हैं जिन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को अपनी फर्स्ट चॉइस रखा था। आज जो नतीजा निकल रहा है वो इसीलिए निकल रहा है, राइट। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते तो शायद उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को जो संस्कार देते उसमें ये इतनी वियर्ड सिचुएशन हमारी सोसाइटी की या पूरे ग्लोबली ये सिचुएशन नहीं आती, है ना। आपके पास पैसा बहुत आ गया है, आपने बहुत कमा लिया है, आप अपने बच्चे को पूरा शेल्टर करते हैं, उसकी गलतियों को छुपाते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं बच्चों की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है उनका बच्चा इसलिए बिगड़ा है क्योंकि उसके साथी बिगड़े हुए। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो बिगड़े संगत में भी सही अगर रहता तो वो चार को और सही कर सकता था। ये मॉरल सेंस नहीं है, विल पावर की कमी है। तो ये सारी कमी कहाँ से आ रही है? पेरेंट्स में से आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स ने इजी वे आउट अपनी लाइफ का ढूंढा था, तो बच्चे भी इजी वे आउट अपनी लाइफ का ढूंढ रहे हैं। तो हम किसी को दोष अगर देंगे तो हम उनके पेरेंटल जनरेशन को देंगे, और उनको सुधारने का काम भी उन्हीं का है। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पे ये चीज देखें तो आप बच्चों को शेल्टर करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन गलत तरीके से मत करिए। आप उनको उनकी गलती का एहसास कराइए। वो तभी हो पाएगा ना जब पेरेंट गलती समझेंगे। प्रॉब्लम पेरेंट्स में है। पेरेंट्स ही नहीं मानते कि मेरे बच्चे की गलती है। उन्हें लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैंने उसको पूरा सारी सुविधाएं दी है, वो बहुत अच्छे संस्कारों में बड़ा हुआ है, वो गलती कर ही नहीं सकता। अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो उसके साथियों की वजह से हुई है। ये वो भूल जाते हैं कि साथी भी उसी की तरह के लोग, आदमी अपने ही तरह के व्यक्तियों को अट्रैक्ट करता है। आज हम लोग क्यों इस प्लेटफॉर्म को इतना पसंद करते हैं? क्योंकि शायद हम सब एक जैसे हैं, राइट। तो आप जैसे होते हैं आप वैसे ही वाइब्स अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही सर्कल आपका बनता है, और आप वैसे ही इन्फ्लुएंस करते हैं अपने सर्कल को जितना आप उस सर्कल से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन फैक्ट्स को अगर हम पेरेंट्स को समझा सकें किसी तरह तो शायद प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व होंगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो जो हैं वो, उसके लिए तो युवाओं को ही ट्रेन करना हमारी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि सस्टेन करने की स्टेज में वही लोग हैं अभी। हम लोग अब जाति जनरेशन्स में हो रहे हैं, हालांकि हम मानते नहीं है ये बात, मैं तो नहीं मानती हूँ, लेकिन हो तो रहे हैं। जो जो फैक्ट है वो है, इयर्स आर पासिंग बाय, राइट। मैं भी अगले साल 60 की हो जाऊंगी। तो कितना भी हम कह लें हम युवा हैं, युवा हैं, हम, हमारी सोच युवा है, लेकिन हमारा एटीट्यूड युवा है। लेकिन हमें आज के युवाओं को काफी ब्रश अप करने की जरूरत है। उनको उनके गोल्स को उनके मॉरल वैल्यूज से अटैच करना बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा जब उनमें हम मॉरल वैल्यूज डेवलप करें, राइट। हम सारी जिम्मेदारी स्कूल और टीचर और कॉलेज और लेक्चरर्स प्रोफेसर्स पे छोड़ के नहीं रह सकते। गलती पेरेंट्स की है, और पेरेंट्स को एजुकेट होना पड़ेगा। ये मेरा ओपिनियन। यस, थैंक यू मैम, एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। अपने पेरेंट्स की जो गलती है उस पे थोड़ा लाइट डाला है, तो डेफिनेटली गलतियाँ अलग अलग लोगों की हो सकती है। इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला था कि चार लोगों में अगर वो है तो शायद चार लोग और सुधरने भी चाहिए थे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हम ऐसा देखें कि ऐसे युवाओं ने किसने किया है, तो आपने अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा होगा तो 16 साल की एज में उन्होंने
क्या कर दिखाया था। तो बिल्कुल। वो भी तो युवा थे, मतलब वो भी यंग थे, और वो भी तो स्वामी ऐसे लोगों विवेकानंद के के साथ में थे, बट हम्म उनके साथ में रह के उन्होंने उनको उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया दूसरों के अंदर। वो अच्छे मतलब अच्छे विचारों को, अच्छे थॉट्स को लेके आए। स्वामी विवेकानंद जी से आप बोल रहे थे, उन्होंने भी तो वही परिवर्तन का काम किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप अगर हमारे महाराष्ट्र में मैं देखेंगे आपको संत इंटरप्ट कर ज्ञानेश्वर। रही हूँ आकाश। स्वामी विवेकानंद तो बहुत कम साल उनकी आयु थी, है ना? यस। कुछ वो 37 या 39 में ही वो खत्म हो गए। 33 है। 33 सोचिए। और उसमें उनका जो उन्होंने जो इम्पैक्ट क्रिएट, ये होती है लाइफ, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। ये बात सबको समझना बहुत जरूरी है। उनका इम्पैक्ट एग्जैक्टली। आज तक है और शायद सदियों तक रहता ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो विजन दिया है सोसाइटी को, वो विजन अगर यूथ फॉलो करे तो आई थिंक सस्टेनेबल गोल्स हमेशा ही डेफिनेटली। अचीव हो तो जाएंगे। युवाओं के आदर्श भी ऐसे लोग होने चाहिए। अगर हम आज की थोड़ी बहुत चीजें ऐसे भी देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वापस चीजें आ जाती है वो थॉट प्रोसेस पे ही। तो हम किन किन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं? अगर हम विवेकानंद जी को आदर्श मानते हैं, तो उस तरीके से ही हमारे हाथों से काम होगा। अगर हम जस्ट ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो मतलब अलग अलग तरीके के हैं, अगर वो उनके आदर्श ऐसे नहीं है, वैसे लोगों को हम फॉलो करते होंगे, तो वैसे ही बन जाएंगे। तो जैसे हम फॉलो करते हैं, इम्पोर्टेंट तो वो चीजें भी है क्विकली, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट है, सबको हम क्वेश्चन पूछेंगे, सबकी राय लेंगे। तो हम ये राउंड जो है, ये सेकंड राउंड जो है, थोड़ा क्विकली शेयर करेंगे। क्या हमें जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, अगर हम युवाओं की वृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर से मैं राजपूत सर से शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या सर, आपके आपको क्या लगता है कि क्या एक सॉल्यूशन ऐसा आपके एंड से जो एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद थोड़े प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं, और हम नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या युवाओं को एम्पावर कर सकते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन आपके एंड से। तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें 3 पॉइंट्स बोलता हूँ। पहला है कि वी हैव टू लिव फॉर द नेशन। वी हैव टू लिव यस। फॉर द नेशन वॉट एवर द एज फैक्टर। अभी जैसे मैडम बोला, ममता मैम ने, we are young in the mind, so we have to live for the nation. This is point number one. We have to show that what is the purpose is there, right? युवा को कि why it is required, why it is essential, और उसका आगे का क्या इफेक्ट आने वाला है, रिपरकशन नहीं, इफेक्ट क्या आने वाला है। और थर्ड यस। है कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग, बिकॉज द वर्ल्ड इज गेटिंग चेंज। तो इमीडिएटली हमें भी पहले लर्न करना है और फिर उनको लर्न कराना है, क्योंकि पहले चेंज यहाँ से शुरू होता है, फिर वहां से आप चेंज लेके आ सकते हैं। तो ये मैं केवल बोलना चाहता हूँ, सिंपल। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लर्निंग करेंगे और हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम अगर एम्पावर करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तब जाके हमारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे सर भी लास्ट टाइम बोले थे एक बार कि देश ने हमारे लिए क्या किया, ये क्वेश्चन से अगर हम ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग सोचेंगे कि मैंने देश के लिए क्या किया है, तो शायद चीजें बहुत सारी बदल सकती है। और यही सब चीजें हैं कि जो एक अच्छा युवा बना सकते हैं, या हम नेशन को एम्पावर कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन, एक एक चीज, क्या आपको आपको क्या लगता है डॉक्टर बेदी मैम, कि जो चीज करने से हम युवाओं को एम्पावर कर सकते हैं, या क्या सॉल्यूशन है आपके पास? मैं seeing from my OPD point of view, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई वुड से कि चैरिटी begins from home। तो बच्चा वो नहीं करने वाला है जो आप बोल रहे हैं, बच्चा वो करने वाला है जो आप कर रहे हैं। सो if our behavior as a whatever our behavior as a parent is, that is going to be the destiny of a child। तो अगर इतना इम्पैक्ट है हमारे बिहेवियर का, अगर हम इस बात को समझें कि हमारा बिहेवियर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, तो मे बी ग्रेजुअली ठीक है, वी हैड अ हैबिट, बट द गुड पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद या 25 साल, ब्रेन अब आपका डेवलप हो रहा है, इट कैन डेवलप अप टू एनी एज। सो वी कैन इनकल्टेट सम हैबिट्स, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को एनालाइज करो, और कुछ चीजें हम बदल भी सकते हैं किसी भी उम्र में, बिकॉज
your child is not going to do what you say, but it is he or she is going to do what you do. So Yes, exactly. home की value system जो है ना, that is very important. यस, थैंक यू मैम। और जैसे मैम ने शेयर किया है कि हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो कितना अच्छा होगा ना, कितना अच्छा होगा जब इसको थोड़ा विजुअलाइज करके भी देखते हैं, कितना अच्छा होगा कि हम अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं। जो भी चीजें हम बाहर देखना चाहते हैं वो हम अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, एक एक चीज एक एक महीना अगर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे कि अगर हाँ क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या ये चीजें क्या इम्पैक्ट ला रही है, तो कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, बाहर का जो चल रहा है वो तो है, बट जहाँ से शुरुआत होगी तो कितना अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। सो थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन मैं डॉक्टर सुबा मैम को भी पूछना चाहता हूँ कि मैम आपको क्या लगता है कि क्या एक ऐसा सॉल्यूशन आपके पास है जिससे हम नेशन को एम्पावर कर सकते हैं, यूथ्स को एम्पावर कर सकते हैं? Akashi, I would like to start where Bedi ma'am has left. That yes, guidance is very much important. Yes. They are clueless ships, because radarless ship like that, they are moving around. It is not that there is a dearth of resources or opportunities. There are plenty number of opportunities and resources are available, but students are not aware, or children are not aware that what they should pick. Yes. Asta ma'am also said, Mamta ma'am has also said this rightly, that family values are missing somewhere. The discipline is not there at all. And as you were talking about that, whom they are following, that matters a lot. Nowadays, they are following these social media promoters, they are following them. And cluelessly, they are moving to various directions. They don't know. Even now, their parents, they come and say, मेरे से तो संभलता नहीं है, or the regular statement that we get is they don't listen to us. It just because of that, they have no guidance. Nobody is there to guide them. Nobody is there to stop them, restrict them, discipline them. That is very important, which was there in our life. These things are missing, because of which today's youth, which is a house of energy, they have dream, but they don't know where to go and what to opt for. So according to me, they need to be disciplined. They need to be taught values, as well as you can say they should be guided. Like councils are there in schools, counselors are there, everything, options are there. But you need to, you can say, utilize them, or find out what is best for you. So guidance, according to me, is very important for the youth. Yes, thank you, ma'am. The discipline and the guidance, the two things are really important. But just ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हमारे पास सब सॉल्यूशंस होते भी हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती है बैकग्राउंड में जिसकी वजह से वो पर्सन या तो एक्शन नहीं ले पाता, या फिर उस चीज को मतलब मुझे पता है कि मेरे पास कोई गाइडर है, मेरे पास सॉल्यूशंस है, मेरे पास कोई ऐसे पर्सन है जो मुझे गाइड कर सकते हैं, स्टिल वी डू नॉट अप्रोच, और कुछ अलग ही फेयर अंदर बैठा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज करके आगे पूछना चाहता हूँ ममता मैम से कि मैम आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सॉल्यूशन जो रिसोर्सेज भी है बट स्टिल हम लोग एक्शन नहीं ले पा रहे, या यूथ एक्शन नहीं ले पा रहे, या जो बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे, तो उनके लिए क्या आपको लगता है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर हम गाइडर की बात करेंगे तो गाइडर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो गाइडर को कैसे चूज किया जाए, उसको कैसे लाइफ में लेके आए, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बट स्टिल आपके एंड से आपको क्या लगता है कि जो लोग फायदा नहीं उठा पा रहे, या जो चीज अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या आप सॉल्यूशन देना चाहते देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से उनको रिसोर्सेज को वैल्यू करना सीखना है कि रिसोर्सेज हैं, बट आपको रिसोर्सेज वैल्यू करना है। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हार नहीं माननी है। द कंसिस्टेंसी इन अप्रोच हैज टू बी कंटिन्यूड, जो कि बच्चों का आजकल
स्पैन ऑफ क्या कहता है, अप्रोच का स्पैन बहुत कम पेशेंस हो है। गया है ना। अच्छा। तो वो चीज बढ़ना जरूरी है, और उसमें उनको सपोर्ट की जरूरत शायद पड़ती है कभी कभी। दूसरी बात यह है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना उन्हें सीखना पड़ेगा इन ए पॉजिटिव मैनर। वो बुकिश मैनर में नहीं होता है कि मतलब आप 10 बार गिरे हो तो 11वीं बार आप खड़े हो जाओगे। बच्चे थक जाते हैं गिर गिर के, और फिर एट अ स्टेज वो लोग जो है गलत संगत में पड़ के और गलत आदतों में लग जाते हैं। तो हमें उन्हें रियलिस्टिक अप्रोच देनी है फॉर एनीथिंग। Again, I will come back to my own statement. I always give one statement. हर किसी को मिरर में अपनी शक्ल बहुत अच्छी लगती है। हर कोई मिरर में जब मिरर के सामने खड़ा होता है उसे लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, राइट। लेकिन वो वर्चुअल इमेज है। मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये बात सब लोग भूल जाते हैं। आपकी इमेज दूसरे की आंखों में देखिए, क्योंकि लेंस से रियल इमेज पता चलती है। ठीक है। तो कभी भी अपना असेसमेंट, ओवर असेसमेंट मत करिए। असेसमेंट आप अपना लॉजिकल करो, प्रैक्टिकल करो, अप्रोचेबल रहो, और अप्रोच को सही रखो। ये बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ राइट वे ऑफ एजुकेशन कंपाइल्ड विथ वैल्यूज दी जाएगी तभी हो पाएगा। बाकी यूथ इज क्वाइट केपेबल। मैं आज भी कह रही हूँ, हम हमारे समय से आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं उसके पास। शायद यही वजह है कि वो कंफ्यूज है। उसके पास इंफॉर्मेशन हद से ज्यादा है, राइट। और एक गलती जो जो आकाश आपके ही स्टेटमेंट से मुझे समझ में आई थी, आपने जो कहा कि उनका आदर्श गलत होता है। यूजुअली हम ये गलती हमारी है। मैं कई सारे जगहों पे जब फंक्शंस में जाती हूँ, मैं आपको सच में बता रही हूँ कि वहां पे जो एग्जाम्पल दिया जाता है, सामने खड़ा किया जाता है। ठीक है। अभी एक जगह मैं गई थी तो एग्जाम्पल थे रजा मुराद। आई शुड नॉट नेम द पर्सन, बट देन स्टिल आई एम, क्योंकि हमारा एक क्लोज ग्रुप है तो हम बता सकते हैं। अब जब चीफ गेस्ट आ रहे हैं और स्टेज पे जब वो बोल रहे हैं, तो वो सीधे यही बात बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं तो 10वीं में भी फेल हो गया, और उसके बावजूद भी आज मेरे पास जो मैं चाहूँ वो है, और जो मैं चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा मैं स्पेंड कर सकता हूँ। तो आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। उनका बोलने का सेंस दूसरा है। लेकिन जो यंग माइंड सामने बैठे हैं, वो जो जिस वे में उस मैसेज को लेते हैं, उनका लेने का तरीका ये होता है कि मैं फालतू ही कॉलेज आ रहा हूँ, पढ़ लिख के होना क्या है, ये देखो बिना पढ़े लिखे ये करोड़पति हुए पढ़े। तो एग्जाम्पल जो लोग दे रहे हैं वो गलत तरीके से एग्जाम्पल जा रहा है। आपको हमेशा ये चीज रियलाइज करनी है। क्यों नहीं हम शुक्ला की, या जो शर्मा जो अभी अंतरिक्ष में गए हैं, उनकी हम एग्जाम्पल देते हैं, किस लेवल पे पढ़ाई की होगी, राइट। तो आपको एग्जाम्पल्स सही देने हैं। अगर मैं जब अपनी स्पीच में मैंने जब इस चीज को थोड़ा सा एक डिफरेंट डिसेंट मैनर में ऑब्जेक्ट किया, तो मुझसे एक आर्ग्यूमेंट आया था मेरे पास कि हमारे प्रधानमंत्री कौन सा डिग्री होल्डर है। मेरे पॉइंट डिग्री होल्डर से नहीं है। प्रधानमंत्री ने जितनी पढ़ाई करी है वो डिग्रियों के बियॉन्ड है। ही हैज नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड्स, एवरी स्ट्रीम, एट ऑन हिज टिप्स एवरी मोमेंट। ये चीज आपको सीखने की होती है। आप थ्री इडियट मूवी को एग्जाम्पल लेके कोट करते हैं। थ्री इडियट मूवीज में ठीक है, आपको अपनी पैशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलो कौन कर पाया? रेंचो कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके पास एक विल पावर थी, उसके पास एक एकेडमिक स्ट्रेंथ थी। तो जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती हैं तो डेफिनेटली गोल्स मीट हो जाते हैं। मेरा ऐसा सोच। एग्जैक्टली और इसी चीज पे मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, वो शब्दों में अटक जाते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, तो वो उसी तरीके से जज करते हैं। तो एग्जैक्टली। ठीक है, यंग माइंड से वो वैसे कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है ना कि सही समझ होना इम्पोर्टेंट है कि उस बंदे ने भले वो 10वीं पास हुआ है, बट बाद में क्या एफर्ट्स किए वो राइट। समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्री इडियट्स वाला एग्जाम्पल
तो ये तो लिटरली बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग देखते हैं अच्छा रैंचो ऐसा, बट रैंचो के पास वो कैपेबिलिटी, वो अलग अलग तरीके से सीखता था, वो उसके अंदर वो जीनियसनेस था ही, वो उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी थी, वो अलग अलग चीजें। वो फ्रिज खोलते हुए लोगों ने जज नहीं किया। वो फ्रिज भी मतलब बाहर जाके वो क्या करता था, वो टाइम पास थोड़ी ना करता था, हाँ, या बाहर जाके दोस्तों के साथ घूमता थोड़ी ना था। तो कुछ ना कुछ वो सीखता था। सीख रहा तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। भले पढ़ाई लिखाई एकेडमिक स्किल आप इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे, मत लीजिए, बट अदर स्किल्स जो है आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसको परफेक्ट कीजिए। थोड़े सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी करना चाहिए। एंड जो चीजें इंपॉर्टेंट है खुद को बेहतर बनाने के लिए, वो तो करना ही चाहिए। एंड सेकंड चीज जो आदर्शों की बात है, तो ऑफकोर्स वो आदर्श अच्छे ही होने चाहिए। आदर्श बुरे हैं तो हम कहीं भी अटक सकते हैं, आदर्श अच्छे ही होने चाहिए। एंड जिस दिन हमारे आदर्श अच्छे बनते हैं, भले ही हम कभी गलत काम होने की कोशिश भी होता है बाय जाने अनजाने, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना कि हमारे इधर मराठी में बोलते सातव्या पडद्याआड कधीतरी लाजणार। तो कहीं ना कहीं शर्म आती है सातवें पर्दे के बाद भी, कि कहीं ना कहीं गलत चीज हो रही है। तो अच्छे आदर्श होंगे तो वो आएगा ही, तो अच्छे आदर्श होंगे तो हम अच्छा काम ही कर पाएंगे। तो ये आज के युवाओं के लिए, एंड बेसिकली मैं बहुत सारे युवाओं को जानता हूँ आजकल, वो अच्छे आदर्शों के बारे में अगर हम लोग उनको देखेंगे, आज आपके आदर्श कौन है ऐसा पूछेंगे, तो बहुत अच्छे लोगों को वो नहीं जानते। अगर हम अच्छे लोगों के बारे में उनको पूछे, तो अच्छे लोगों के बारे में उनको पता नहीं। शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही वैदिक संस्कृति वाली चीजें पूछ लेता हूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनको वो जरूरत नहीं होगी, बट वो जरूरत है। वो लोगों के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, अर्जुन कौन थे, कृष्णा कौन थे, भीम कौन थे, युधिष्ठिर कौन है, तो अगर उन लोगों की चरित्र पढ़ेंगे, हम रिसेंट हमारे जो भी महान योद्धा थे उनके बारे में पढ़ेंगे, तो शायद उनके लाइफ से हम बहुत सारी चीजें लर्न कर पाएंगे। एंड जो जो छोटे छोटे फेलियर्स आते हैं जहाँ पे ये जो सुसाइड वगैरह होते हैं, तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सुसाइड के लिए बहुत सारा हिम्मत चाहिए, बट क्या उतना हिम्मत वो लाइफ जीने में अगर लगाएंगे तो अच्छा लाइफ नहीं जी सकते हैं क्या? तो मैं मानता हूँ सुसाइड के लिए कोई हिम्मत नहीं, वो हारे हुए इंसान है। भले इस बात से कोई डिसएग्री भी हो सकता है, बट मैं मानता हूँ कि उतना ही हिम्मत हम जीने में लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल इसी क्वेश्चन को लेके, आकाश जी, मैं क्योंकि युवा, आई विल जस्ट टेक अ लीव, राइट, बिकॉज आई यस थॉट कि 6:45 पे खत्म कर दोगे, मुझे कहीं जाना है। तो तीन चीज मैं जो कि चलेगा मैंने सर। भी लर्न की, जो अभी मैम ने हाँ, बोला, पहले चीज कि वी हैव टू ब्रिंग द रियल हीरो इंस्टेड ऑफ रील हीरो, राइट and राइट that is the reason we have to respect the today's real heroes, which are the ideal solution for the people, for the youngster. Second thing is, instead of being a more educated person, you have to be more knowledgeable person. आज यस knowledgeable person की requirement है, instead of having the multiple degrees which is there. राइट लास्ट पॉइंट जो आपने बोला मिरर के बारे में, तो ह्यूमरस में बोलता हूँ कि अगर आपको देखना ही हो तो सबसे पहले आधार कार्ड की फोटो देख लो तो समझ में आ जाएगा क्या है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सो रियलिटी है। मच, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच, आई हैव थैंक टू यू लीव, सो राइट, मच, इट वाज नाइस थैंक यू सो लिसनिंग। थैंक यू। मच। थैंक यू सर। सो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और ये युवाओं के साथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम उनसे जानते हैं। बेसिकली मैम जो है प्रिंसिपल है, और युवाओं से उनका रेगुलर कांटेक्ट भी है, वो हमेशा उनके लिए काम करते हैं। तो मैम आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन से, क्या आज के युवाओं के आदर्श क्या सच में सही है, और अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं ताकि उनके परिवर्तन ला सकते हैं? आपके पॉइंट, आपके एंड से क्या सॉल्यूशन है उसके लिए? ये- ओके, थैंक यू सो मच। आई वाज लिसनिंग आकाश जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, हरवदन मैम का भी, एंड शुभा जी, एंड ऑफ कोर्स ममता जी का कन्वर्सेशन सुन के मुझे बहुत, एंड इंक्लूडिंग यू, इट वाज अ नाइस दिस थिंग डिस्कशन which we always do, which we always, I believe that we need to talk with the youth. They are being taken, they always think that we are underestimated, we are not inclusive in the society. So as a result, I believe first thing is that give them to make decisions. अगर हम उनको decisions लेने दें, छोटे छोटे चीजों से ही लेके, the youth of today will become more reliable. And I started with the college
taking the initiative of college activities, or maybe the class timetable, how they want. I got a lot of feedbacks from other teachers also, professors telling me that timetable बच्चे क्यों बनाएंगे? I said, let them take the responsibility, let them take the decision. They need a period, timing for playtime, recess के time कितना होना चाहिए. So let us start with the youth. So they are the teenagers and they know what they are trying to do. So if we give them the responsibility, I believe that they have a lot of sense of responsibility in them and they feel that they're needed by the society. उनकी भी बातें आवाज सुनी जाएगी. इसके लिए वो एक फेथ, एक ट्रस्ट उनमें डेवलप हो जाता है. जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ तो अगर मैंने उनके साथ बैठ के मीटिंग ली, द यूथ कमिटी, I'm calling all the youths of the college, and they are sitting together with me, sharing the same, the round table. And there we are discussing, and I'm listening to them, their objections. So as a result, उनमें एक belief, एक discipline automatically आ जाता. How to respect? If we give respect, we all know we get respect in return. So respecting the youth is also very much necessary. And every time, which I do normally, is giving them the chance to volunteer. Volunteer for every situation. It might be an inter-college activity. It might be you taking the responsibility of the classroom when a teacher is busy in another meeting. So they are developing the leadership qualities. They are also becoming responsible citizens. They know what exactly is the responsibility showered on them and how they can take it back. But if I say that नहीं बच्चों को क्यों बिठाएंगे क्लास में, वो तो बच्चे हैं, जो हम पहले करते थे. Even our teachers used to say that नहीं इतना बड़ा responsibility teacher is there walking around in and around. So we try to give that students that impact. Let them take the responsibility. आज अगर वो छोटे छोटे जिम्मेदारियां नहीं ले पाएंगे, एक क्लासरूम, एक फ्लोर को मैनेज करना. And Akash ji, let me tell you, these students, they manage the floors much more better than my professors, because in the sense they are with them, the like-minded people. As a result, there is silence on the floor. Even if we teachers or professors are having a meeting, a quick meeting, a quick maybe 10 minutes, 5 minutes meeting, we can see in the camera that the students are all seated in the bench. We don't know whether they are studying or not, but that's a different issue altogether. But the discipline is there, all seated, no back answering, no fighting. Whereas this a few years ago was missing. A classroom में teacher नहीं है, there is chaos, shouting, and a lot of mismanagement was there. So the youth of today, I believe, needs responsibility. हम responsibility कैसा दे, that is dependent on us. हम उन पे बंदूक थमा दे तो वो भी responsibility हो गया, भाई जाके गोली से उड़ा दो 2-3 बच्चों, whatever, XYZ. I don't want to go deeper into that, but what responsibility we as elders are giving to the youth. So in that way, they will be developing themselves. So if we give them a proper responsibility, developing the leadership skills, so I believe that they are growing. एक पूरा इवेंट मैंने करवाया मेरे कॉलेज में, लगभग कम स्टूडेंट्स है, it's not a very huge one. So I gave them the full responsibility of welcoming the freshers batch. I said no professors will be involved. I want to come and see what you all planned, how you all took it. So they all started racking. Some students started telling me, "Ma'am, हमने अलग WhatsApp group बनाया, वहाँ पर daily का हमारे messages." So they are involved in positive thinking. They made the ID cards of different presidents, secretary, treasurer, this that, and committee became 2 minutes में without our help. तो उनकी जो mind है तो positive upbringing में जा रहा है. Instead of giving them, no work, भाई आओ कॉलेज जाओ पढ़ाई करो और चले जाओ. So even if we think about in that way, we are not doing wrong. पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है,
टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, अपने लेसन्स देते हैं, curriculum based education is there. But now we are bridging the gap. We need to develop this youth, give them the responsibility which is required, plus keeping them in our eyes, in our threshold, like we have the cameras in the floor. Obviously, we can see them, judge them, and we have complaint box in every floors where the students can give a nameless complaint also. We don't want their name, so they can, put in there. So there are several changes which has come up along with the youth of today. They only need to, they need the awareness to be spread amongst them that yes, we are also valuable for the society. It is not that only the elders are responsible for any meeting, including youth in the meetings also will make them more responsible. So I Yes. believe giving them the power to think, giving them the power to have the initiative in them will make them better citizens of tomorrow. और वो खुद सोचेंगे तो वो खुद कर पाएंगे. अगर हम सोचने ही नहीं देंगे उनको, हम सिर्फ हमारी सोच ही उन पे डालते जाएंगे, तो हम कैसे पता चलेगा हमें कि इनके माइंड पे क्या है. I believe every year, 27 years I have been in this teaching line, now as a principal for the past 4 years. Now I believe every year is a learning for me. Every academic year I go to learn something from the youth of tomorrow. So I first tell them, you tell me, then I will take a different situation and I'll explain it to you. The students enter my office, they touch my feet. I explained them that touching feet doesn't show respect. You have to understand it should come from inside. It's not that the hoarding which is there, principle hai to jaake pair padna hai. No, it is from inside. So if we can inculcate all those things, I found some students, they were not touching the feet after when I gave the speech. I told them that you should think when it comes from inside, then only you should do. We are not here to make you all touch our feet. That is a custom, a tradition which you have learned. That's okay, but that doesn't mean forcefully you have to do. When you feel that, yes, they are our gurus, they are our teachers, we can learn from them, then they will realize it on their own and automatically they will bow down to you with respect. So I Yes. believe the youth of today needs to be given responsibility and given them the social power to handle it on their own instead of nurturing their brain or sitting over to them and making them think. So that is what I believe in the conventions, and I've seen students developing a lot. The students who were taking, a lot of the teenagers of today, they have lot of smoking habit and bad habits. I never scolded them. I just told them that, see, everything has an age, everything has a requirement. Right now, this is not the age. So making them realize, okay, मैम ने मना नहीं की. अगर हम डायरेक्टली उनको मना करते, so then they will say, नहीं, जो मना कर रहे हैं वही करना. So as a result, मना नहीं करते हुए, उनके साथ जाते हुए, उनके फीलिंग्स के साथ जाते हुए, हमने हमारी बात भी रख दी है. अगर वो इस वक्त को, this youth, this time, if they take it out properly, thoughtfully, thinking it, then आगे की जिंदगी they will be completely in the tracks. उनके लिए आगे स्मोकिंग करना है, ड्रिंकिंग करना है, they will know what to do in the future. So that is what I believe about the youth. थैंक यू मैम. एग्जैक्टली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग से वो सब चीजें आ जाती है. जब हमें कोई चीज का पता चल जाता है कि अच्छा नहीं, वो ड्रिंक करने से प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो नहीं करेंगे. अगर कोई चीज बुरी है तो बुरी है, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. बट अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ हम अवेयर नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. एंड जितने भी लोगों को हम देखते हैं जो अच्छे हैं, वो शायद अवेयर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पता नहीं है, बट उनके अंदर वो अवेयरनेस है, उनको पता है, एंड इस वजह से वो अच्छे हैं. और जो नहीं कर पा रहे, उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं आया है, वो उतना पेन उनको नहीं हुआ है,
धीरे धीरे आ जाएगा, वो हम होपफुली रखते हैं। बट बेस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम इन्वॉल्व करें, यूथ्स को इन्वॉल्व करें। जैसे आपने बताया, इन्वॉल्व करेंगे तो वो सीखेंगे, कुछ गलतियां करेंगे फिर उसमें से सीखेंगे, तभी जाके तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि अच्छा जॉब चाहिए तो अच्छा कितना एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो बोलते कि फिर लेंगे नहीं, और फ्रेशर है तो मतलब हायर करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर फ्रेशर के पास आएगा क्या से, काम करने का मौका देंगे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। तो मतलब बता, वो तो बात अलग है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी वो स्टूडेंट सीख रहे हैं, जब बन रहे हैं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर बनाना है तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो एक लास्ट क्वेश्चन जरूर सर से पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है एज ए होलिस्टिक डेवलपमेंट कोच, एज ए मेंटर, आपकी क्या राय है कि ये जो यूथ है, यूथ जस्ट एज का हम बात नहीं कर रहे हैं, एज तो ऑफ कोर्स वो भी मैंडेटरी है, बट ये जो युवा वृत्ति है, तो आपको क्या लगता है कि मेंटरशिप या फिर ये जो कोचिंग है, ये मेंटरिंग है, ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है, या उससे क्या हम सॉल्यूशन दे सकते हैं यूथ्स के लिए, यूथ्स के एम्पावरमेंट के लिए? Definitely. Thank you for inviting me. Good evening, everyone. Actually, I feel in two ways as a holistic growth mentor and as an author. Uh, uh, मैं बहुत जगह जा पाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ। तो मैं क्या फील करता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हरवर्धन कौर बेदी मैम एंड उसके बाद उनको कैरी फॉरवर्ड किया था मुखर्जी मैम ने कि लाइक जब कोई दिशा ही नहीं है, कोई गोल्स ही नहीं है, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे और किस दिशा में वो जाएंगे, है ना। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि अगर एक शिप खड़ी है डॉकयार्ड पे और ऑन द बैंक ऑफ द ओशन, तो उस शिप को एक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, मतलब बिकॉज इट हैज नो गोल्स, इट हैज नो डेस्टिनेशन। बट द मोमेंट a ship has its captain and a goal and a place to reach, destination to reach, definitely it will reach 99% at the same point, है ना। Yes. बट द मोमेंट दे आर नॉट हैविंग, उसमें फ्यूल भी है, सब कुछ है, बट उसमें कैप्टन नहीं है और कोई उसका गोल नहीं है, तो सडनली ओवर अ पीरियड टाइम वो ड्राउन हो जाएगा ओशंस में। इट इज एज लाइक एज फॉर द यूथ ऑलवेज। एंड बट आई फील टुडे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 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 हम लोग इन्फ्लुएंसर ही सुन रहे हैं, बट देर आर नो इंस्पायरर्स, very less. And today youth are following influencers, but the moment they are finding their inspirer and they are following inspirer, definitely they are going to become one among them. मीन्स जब मैं एक छोटा बच्चा था, अपनी मैं स्टोरी अगर छोटा बताऊं, तो मैं जब क्लास 5th या 6th में था तो मुझे एक जी की कंपटीशन की प्राइज मिली थी बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एट दैट टाइम उन्होंने एक सेंटेंस बोला था जिसको मैंने अपने बुक में 5 डायमेंशनल ग्रोथ में सबसे पहले पेज पे लिखा है, क्योंकि वो मेरे लाइफलाइन है। दैट इज उन्होंने बताया, जो डीएम थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये स्वामी विवेकानंद का उन्होंने उस दिन वो बोला था अपने स्पीच में, और उस दिन से वो एक लाइक इट वाज अ गुरु मंत्र फॉर मी। मैंने उस चीजों को हर किताब में, हर कॉपी में, हर जगह जहां मैं लिख सकता था लिखता रहा, और इट इज लाइक आई एम pursuing my goals, I am following my goals day by day, and I am in the right direction. डेली 1% भी मैं अचीव करता हूँ तो लगता है मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो उस तरह से कोई इंस्पायर अगर किसी को कर पाए, तो मैं तो देख पाता हूँ कि जैसे मैं स्वामी विवेकानंद से, उस तरह से जो डीएम है, या बहुत से लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर हो पाता हूँ। लेकिन आज के समय में लोग, यूथ जो है, वो इंस्पायर किससे होगा? जो उनको मिल रहा है रेडीमेड, दैट इज अवेलेबल ऑन द मोबाइल और ऑन सोशल मीडिया और एनीवेयर, एंड मोर ऑफन दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द एक्टर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं और वो।
तो जो चीजें या सीरियल्स है या उनको जो वहां पे इजिली अवेलेबल मिल रहा है उनसे वो इंस्पायर हो जाते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. Even when they are playing the roles of a hero, at the same time, people are getting influenced by the actors and not by the heroes whom they are playing. Means Yes. अगर बॉक्सर्स का रोल प्ले कर रही हैं प्रियंका चोपड़ा, तो मैरी कॉम का नहीं होगा कि प्रियंका चोपड़ा को लोग फॉलो कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं. बट एट द सेम टाइम हमें फील करना क्या है कि हमें इंस्पायर किससे होना है. अगर हम बड़े हैं तो अपने छोटों को, जो यूथ है, उनको गाइड करना है कि आपको इंस्पायर किससे होना है, आपको बनना क्या है, आपको एग्जाम्पल सेट क्या करना है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. तो उसके लिए हमें वही करना है, क्योंकि एज मैम हैज टोल्ड, आई वाज लिसनिंग वेरी पेशेंटली, कि बच्चे वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं. जो आप बोलेंगे वो नहीं करेंगे. And I have written in my book also in the last very bonus page. And the moment ये इसको मैंने इस तरह से देखा कि जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो क्या टाइम तो है ही वहां पे सब लोगों के पास. बच्चे क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, मोबाइल देखेंगे, गेम देखेंगे. तभी जब आप भी कर रहे हैं, मैं कुछ अलग करता हूँ. मैं जब ट्रेन में सफर करता हूँ तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैगजीन्स ले जाता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. तो मेरे बच्चे भी अपने अपने छोटे बुक्स लेके जाते हैं, या तो कॉमिक हो या कुछ भी हो, वट एवर दे कैन. तो Yes. इवन छोटी वाली भी जो मेरी बच्ची होती है, सी इज 5 years 6 years old, सी इज स्टडिंग इन LKG. सी यूज टू प्रिटेंड, मतलब वो कोई भी बुक उल्टा ही क्यों ना हो, बट वो लेके अपना बैठ जाएगी पढ़ने के लिए. और ऐसा कई सिचुएशंस हुआ है ट्रेन में, लोगों ने देख के हमसे फिर पूछा, इंटरेक्ट किया कि अच्छा ऐसा है. तो मैं उनको गाइड किया कि बच्चे को आप जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखेंगे, वो जो देखेंगे वही सीखेंगे. तो वी हैव टू लीव बाय एग्जाम्पल्स. अगर हम किसी को बोले बताएं तो उससे नहीं होगा. वी हैव टू लिव विद एग्जांपल्स. और अभी राइट नाउ जैसे कि आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, आई हैव सर्व्ड द नेशन फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स इन द इंडियन एयरफोर्स. सो वहाँ का मुझे एक एक्सपीरियंस रहा कि आप डिफेंस के जो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंस प्लस देशभक्ति है, डिवोशन है, तो उसको आप दूसरे में कैसे देख सकते हैं. तो एज अ पार्ट ऑफ लाइक अभी इस सिनेरियो में हम जब देख पा रहे हैं अग्निवीर, अग्निवायु और आर्मी में हर जगह, तो अग्निवीर ये क्या है, इट इज अ विजन. हमारे डिग्नेटरीज लाइक मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑल, जो भी है डिफेंस मिनिस्टर, उन लोगों ने देखा कहाँ, कई ऐसे देश है लाइक इसराइल. इसराइल में 100% मिलिट्री सर्विस है. वहां पे जनसंख्या कम है तो 100% मिलिट्री सर्विस है. मीन्स एवरी यूथ हैज टू सर्व इन द डिफेंस फोर्सेज. ओनली आफ्टर दैट दे विल गेट अदर जॉब्स. सो उसको प्रॉपर इंडिया में पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की जनसंख्या ज्यादा है. बट उसको देखते हुए अग्निवीर, अग्निवायु इस तरह से लाया गया है, जिसमें कि 4 साल के लिए एक युवा आ रहा है और सीख रहा है देशभक्ति के बारे में, डिसिप्लिन और हाउ टू लिव. मीन्स एज जैसे हमारा सब्जेक्ट आज का टॉपिक एम्पावर यूथ, एम्पावर नेशन. तो जितने हमारे यूथ एम्पावर होंगे इन ऑल फील्ड्स, नॉट ओनली इन फिजिकल मेंटल, बट ऑल फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फिनेंशियल, इन ऑल एस्पेक्ट. तो जब तक वो हर चीज में एम्पावर नहीं हो रहे हैं, दे कैन नॉट ग्रो होलिस्टिकली. एंड जब तक वो हमारे जो फ्यूचर है, जो यूथ है, वो होलिस्टिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा कंट्री का प्रोग्रेस नहीं होगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यूथ होलिस्टिकली डेवलप करें हर एस्पेक्ट में, और तभी हमारा देश भी उतना ही एम्पावर्ड होगा. दैट इज वाई मैं इसको देखता हूँ उस तौर पे कि हमारे यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हर चीज सीखने का, हर चीज करने का, और वहां से आगे देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. पूरा तो आसमान ही हमारे लिए पड़ा हुआ है, कुछ भी आप कर सकते हैं वहां से. तो ये एक अच्छा शुरुआत है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने किया, वो मैं देख पा रहा हूँ. और इसी तरह से हम जैसे कोचेज है, प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, एवरीवन जो एक यूथ को देख पा रहा है, जो लीड कर पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं कि उनको गाइड करने की स्थिति में है, देन डेफिनेटली वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल्स. कि उनको एक एग्जांपल सेट करें, उनको फॉलो करें और उनको एक मार्गदर्शन दे, लाइक उनको गाइडेंस दे, गोल्स दे, कि वो एक विदाउट गाइडेड, विदाउट
डेस्टिनेशन वाला शिप ना बन जाए, उनको एक डेस्टिनेशन मिले, गोल्स मिले और एक गाइडेंस मिले, तभी हमारा यूथ भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। एंड थैंक यू आकाश जी फॉर दिस सेशंस। यस, थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लाइफ में गोल्स होना, एक पर्पस होना। पर्पस, विजन, मिशन अगर हम हमारे लाइफ में है तो हम सही जगह जा सकते हैं। तो अगर हम एक ऐसा एग्जांपल ले कि बहुत बड़ा मिसाइल है और उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं है, क्या पता वो डायरेक्शन वापस उधर से घूम के अपने ही ऊपर आ जाए, खुद डेफिनेटली के लिए भी डेफिनेटली। हानिकारक हो सकता है ना वो। तो अगर प्रॉपर गाइडेड है, प्रॉपर पर्पस है, उसके पास प्रॉपर गोल्स है, तो वो एक अच्छे मतलब भले वो इतना पावरफुल नहीं हो बट वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश तो करेगा। तो बहुत अच्छा गाइडेंस आपने शेयर किया है। एंड ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं यूथ के रिलेटेड। यूथ कोई एक एज लिमिट के लिए नहीं है, यूथ एक वृत्ति है, एक एटीट्यूड है। और वो ही एटीट्यूड किसी भी एज में रखा जा सकता है। एग्जाम्पल हमने देखा था कि भीष्म पितामह 170 साल के थे, तब भी युवा थे, वो लड़ने के लिए तैयार थे, वो सेनापति थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसी वृत्ति, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। और आज के युवाओं में शायद वो कमी है, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी चीजों पे रुक जाते हैं। और फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम जैसे कोचेस की है, सर आपने बहुत अच्छे से बोला, हम जैसे कोचेस की, हम जैसे प्रोफेसर्स की है, एजुकेटर्स की है, कि हम उनको वो सिखाए कि आप युवा है, आपके अंदर बहुत सारी पावर है, आपके अंदर बहुत सारा स्किल हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। उनको हम वो गाइड करेंगे, तब जाके वो एक अच्छा मिसाइल, एक अच्छा गाइडेड मिसाइल बन सकता है। एंड वो अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सकता है। एंड तभी तो हम देश को एम्पावर कर सकते हैं। एंड इससे होगा क्या, मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है कि देश, हम अपने देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि क्या पता हम ऐसे लोगों को गाइड करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देश सेवा ही कर रहे हैं। तो वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई अच्छी चीज कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता है, तो और ज्यादा करने का मन होता है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस आप सभी यहाँ पे आए, सेवा का मौका दिया, यहाँ पे आपने जो नॉलेज शेयर किया, उससे कुछ लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट आएगा, वो कुछ करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये देश सेवा ही है। सो थैंक यू ऑल। लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी से, क्विकली, क्योंकि हम थोड़े टाइम को देख रहे हैं। क्विकली हम लोग शेयर करेंगे एक मैसेज, एक दो लाइन में आप क्या देना चाहते हैं आज के युवाओं को। तो मैं डॉक्टर बेदी मैम से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैम, आपका मैसेज एंड एक दो लाइन में प्लेटफॉर्म के बारे में। यस। मैसेज आई वांट टू एको हो रहा है। ओके, हाँ, यस मैम। मैसेज युवा को मैं यही देना चाहूंगी कि स्टे फोकस्ड, यू कैन अचीव एनीथिंग। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से आप कुछ भी यू कैन अचीव। So stay focused and अपने आप, they will be, their life, like if it goes on like this is life, like this is death. So take the positive with the negative. Positive, you are in both ways. You are in one way you're growing, in one way you're learning. You're not losing anything. And platform is lovely. We've made, I mean. लाइक गुड फ्रेंड्स हियर एंड यू वन जो है ना, मतलब कहते हैं कि सब लोग यहाँ पे अपने मन की बात अपने मन से बोल सकते हैं। एंड यू मीट, यू have you learn so much actually, and never finish your learning, and that's my aim and passion in life. So I learn a lot whenever I come here, and thanks to all the people here, and thanks to you. यस, थैंक यू मैम। यस, ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी रहेगी तो हम आगे हमेशा बढ़ने ही है। सो सेम क्वेश्चन फॉर द डॉक्टर सुबा मैम।
Thank you, Akashi. My message to the young generation is that take an informed decision. And when you're taking guidance, choose a right person for the guidance, and informed decision should be taken. And success starts from discipline. That you need to understand. Without discipline, success cannot last. This is what I would like to say. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. And same question, ma'am. What is your message for youth and about the platform, Mamta ma'am? I will just add on to what Bedi ma'am and Shubha ma'am has said. Bedi ma'am और मेरा मतलब I feel you read my mind. It happens that way. जो टिप पे होता है वही हम दोनों एक ही बात यूजुअली दिमाग में आती है हमारे. So I will just add on कि be consistent. Consistency with discipline and with knowledge is very important. Be consistent, be confident. That is very much required. Thank you, ma'am. सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर रचना मैम से भी. मैम, योर मैसेज फॉर यूथ. Yes, this is a lovely part actually, I love. But though not dictating anyone, yes, what Bedi ma'am, Shubha ma'am, and Mamta ma'am said, I'll just continue and add on to that. They already gave the message, which is really nice, and every youth should try to inculcate that what they have said. And just adding to it, I'll just try to say that don't stop dreaming. Dreaming is very important. It's not that we think that dreaming will never make you reach anywhere. So you need to dream beyond the boundaries. If you are dreaming beyond that, then you will be able to at least achieve. Think about that you can do what your parents were thinking or what you are thinking about yourself firstly, and then about your family in future. So dream big, dream beyond the boundaries, and achieve your future. Thank you so much. थैंक यू मैम. एंड ऑफ कोर्स सपने युवाओं के पास ही होते हैं, और जिनके पास सपने नहीं है शायद उनको चेक करना पड़ेगा वो युवा है या नहीं है. तो युवा वो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड को चेक करना पड़ेगा वापस से. सेम सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं के लिए एंड अबाउट द प्लेटफॉर्म? और मैं युवाओं को यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ. मैं अपनी बुक में जो मेरी कोट है वो एक फिर से रिपीट करना चाहता हूँ. जो मेरी बुक है 5 डायमेंशनल ग्रोथ, उसमें मैंने लिखा है यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इमेज. अगेन आई विल रिपीट, यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इमेज. सो आप अपने सेल्फ इमेज को जितना अच्छा बढ़ा सकते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, होलिस्टिक ग्रोथ, in all physical, mental, social, spiritual, and financial, then you are just reflecting your self image to the world, and you will be one after some time. So that is what I want to convey to all the youth. So improve upon your self image. Thank you. Thank you, sir. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी टिप्स तो आज युवाओं के लिए मिली है. एंड आई होप जितने भी लोग ये आगे देखेंगे और जिनके भी लाइफ में ये वीडियो आएगा, हम थोड़ा एक्शन की ओर भी काम करना चाहेंगे, काम करेंगे बेसिकली. और क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक है इस देश के, तो हम भी चाहते हैं कि युवा एम्पावर हो. साथ साथ में अगर हम नेशन को एम्पावर करना चाहते हैं तो हम अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम उन लोगों को गाइड करने की कोशिश करें, उन लोगों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे मौके क्रिएट करें जहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व हो. क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इस तरीके से डिस्कस की है, एंड अगर ये अपॉर्चुनिटीज हम उनको देते हैं तो हम उनके अंदर के पोटेंशियल को और बेटर बना सकते हैं, निखार सकते हैं, उनके अंदर के पोटेंशियल को ला सकते हैं बाहर, एंड एक अच्छा नेशन को बिल्ड कर सकते हैं. सो थैंक यू आप सभी ने यहाँ आके जो पर्सनली प्लेटफॉर्म को जो सेवा करने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद. आपके जो थॉट्स है वो लोगों तक जाए और उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए. सो थैंक यू सौरभ सर फॉर ज्वाइनिंग, डॉक्टर बेदी मैम फॉर गाइडिंग एंड ज्वाइनिंग विथ अस, डॉक्टर सुबा मैम थैंक यू वंस अगेन. Thank you so much, Akash, for giving us this platform to meet with each other and express our
feeling what we feel exactly about the topic. The topic was wonderful. Yes, A lot thank you, could ma'am. be said about it. Thank you so much. Thank you, Akash ji, and thank you. Thank you, Akash. Today's Again, panel the same thing discussion as Shubha ma'am credit has said. yes all ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम सब भी नहीं होते, ना हम एक दूसरे को जानते, ना हम कोई थॉट्स एक्सचेंज कर पाते, ना एनरिच हो पाते। तो हमारी ग्रोथ के लिए भी आकाश को ही थैंक्स है, एक्चुअली स्पीकिंग। थैंक यू आप बुलाने सभी के लिए आपको थैंक यू। सपोर्ट करते हैं तो उस वजह से Thank you बहुत so सारी much. चीजें आती है। थैंक यू, ऑल क्रेडिट थैंक टू यू रचना मैम, इट डॉक्टर वाज बेदी लवली मैम लिसनिंग। फॉर टुडेज पैनल Thank you, डिस्कशन Shubha क्योंकि ma'am. उनका Thank you, आइडिया था। Thank you, Mamta ma'am. Rachna ma'am. Nice talking to जस्ट you. क्विकली Yes, लॉग yes. आउट करने से पहले 2 मिनट में एक चीज शेयर कर रहा हूँ आप सभी, क्योंकि आप सभी एबीसीडी के क्लोज है, पब्लिकेशन के क्लोज है। तो एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप सबको पता है कि इस साल में मतलब अभी 4 महीने बचे होंगे, 4 से 5 महीने ऐसे ही कंसिडर करते हैं क्योंकि बीच में दिवाली आ जाता है। तो वी हैव स्टार्टेड सम सीरीज। तो सीरीज का स्टार्ट हुआ था ऑथरशिप के रिलेटेड, बहुत सारी चीजें अभी ऑथरशिप एंड ट्रेनिंग्स के रिलेटेड चल रही है। तो बुक्स एंड ट्रेनिंग से हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस तरीके से कुछ डिस्कशन चल रहे थे। लास्ट एक मंथ से बहुत सारी चीजें बैकएंड में हो रही है। तो हम लोग अभी अपकमिंग 3 समिट्स प्लान कर रहे हैं एंड उसके रिलेवेंस में कुछ इनिशिएटिव्स प्लान किए हैं। तो एक इनिशिएटिव ऐसा था, अभी नवरात्रि आ रहा है और सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, मतलब क्योंकि आप सभी जानते हैं या सभी मानते हैं स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टोरीज जितना लोगों के पास आएगा, लोगों तक पहुंचेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के ज्यादा चांसेस है। सभी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल Yes. सही। तो यही एक चीज है, क्योंकि अगर हम वैसा मानते हैं तो वैसा कर भी सकते हैं। तो एक इनिशिएटिव बेसिकली वी हैव स्टार्टेड, और उसको थोड़ा क्या होता है ना, कोई भी अच्छी चीज है बट अगर अच्छी चीज सिर्फ दूध देंगे किसी को पीने के लिए ना, तो वो पीता नहीं है। पर्सनली हमारे पास तो देसी गाय है, फिर भी नहीं पी पाते थे। तो उसमें थोड़ा शक्कर मिला के देंगे या कुछ शहद मिला के देंगे तो इजीली पिया जा सकता था, या बॉर्नविटा भी डाल के देंगे। तो कुछ एक्सटर्नल चीज ऐसी हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे या लोगों के लिए ऑनर हो, तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए कुछ मेंटर्स के साथ डिस्कस करते हुए हम लोगों ने एक प्लान किया था कि हम लोग क्या करेंगे। और ये बेसिकली कंसेप्ट बेसिक जो आया था, जहाँ से शुरू हुआ था, तो मैम ने शेयर किया था, बेदी मैम ने, कि हम वुमेन्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो मदर्स के लिए स्पेशली कर रहे हैं। 22 सितंबर में शायद नवरात्रि है, तो उस ओकेजन पे वी आर लॉन्चिंग वन बुक, द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव, जिसमें 101 मदर्स की मदरहुड की जर्नीज है। 101 मदर की मदरहुड जर्नी को फीचर करने का प्लान कर रहे हैं। तो जिसमें क्या होगा कि जो भी मदर्स है, चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, कोई भी, बट उनके पास अगर कोई स्टोरी है जो इंस्पायर कर सकते हैं अदर्स को, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो स्टोरीज को फीचर कर सकते हैं। एंड वो स्टोरी का जो बुक बनेगा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कंसिडर होने वाला है। उसमें कुछ ऐसे लॉजिक्स क्रिएट किए ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कंसिडर हो, तो वो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट भी बनेंगे, को ऑथर भी बन पाएंगे, एंड एक अच्छा 101 मदर्स का एक कम्युनिटी बनेगा। अब सोचिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में, अभी तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड से अपने पास, बहुत सारे बुक्स है, मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस ना करते हुए मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि 101 मदर्स का जो एम्पावर करने की ताकत रखते हैं, ऐसे लोगों का जब एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाएगा, एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा चाह रहे थे, या हमारे जो भी मेंटर्स थे, जैसे बैकएंड में चल रहा था, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि हम ऐसे ही लोगों को उसमें इन्वॉल्व करें जो लोग सीरियस है, कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ नॉमिनल चार्जेस उसमें रखे, चार्जेस पे करते हैं तो सीरियस लोग आते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को मानना है। मैं भी ऐसा थोड़ा थोड़ा मानने लगा हूँ, थोड़ा थोड़ा, मैं ज्यादा उस पर बिलीव नहीं रखता हूँ, बट स्टिल वैसा है। तो जैसे सिस्टम से आता है वैसी कोशिश करते हैं कि चलो मेंटर्स ने बोला है तो वैसे हम एग्जीक्यूट भी करेंगे। बट ऐसी सिस्टम है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कुछ वुमेन्स को रेफर कर सकते हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या जिनकी भी स्टोरीज है, तो आप उनको प्लीज रेफर कीजिएगा। उसका भी नोटिफिकेशन आपको कल तक मिल जाएगा। एंड टुगेदर वी विल क्रिएट सम इम्पैक्ट, और अच्छी स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाएंगे 101 है, तो इसमें कुछ और प्लान्स भी है। जिस तरीके से समिट के साथ इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो उसको बेस्ट सेलर बनाने की कोशिश भी करेंगे, एंड वी विल ट्राई कि उसको एक बेटर लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। फिर मिलते हैं अगले पैनल डिस्कशन तक, तब तक के लिए टेक केयर, ग्रेट डे, बाय बाय। Sure. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.